میرے پیارے ساتھیوں اب دھیرے دھیرے کچھ دنوں کے بعد صدارت کی کرسی پر آئیں گے اور 5 منٹ کے لیے بول کے نکل جائیں گے، اس لیے کہ یہی زندگی کا نیم ہے، یہی زندگی کا اصول ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ جرجیس صاحب تمہیں بہت عزت مل چکی ہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر بہت عزت کے نمونے دیکھ لیے ہیں، ہم آئے ہیں تو یہاں سے جانا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مثلا دعا، بہتر ہے کہ رات کے اندر تاریکی میں رات کے اٹھیے اور وضو بنائیے اور رات کے تقریباً 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد اٹھیے تو اور اچھا، وضو بنائیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھیے، اور اس کے بعد میں سجدے میں ہو تو سجدے میں یا ویسے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ چھوڑ کر جیسے چاہیں آپ دعا مانگیے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیے، وہ دعا آپ کی جو قبول ہوگی میرے بھائیوں، وہ مولوی جرجیس کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے اور آپ کے آمین آمین کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ اس دعا میں جو برکت ہوگی وہ اس میں نہیں، اس دعا کے اندر جو تاثیر ہوگی وہ اس دعا میں نہیں۔ اس دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرش سے اتر کر وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، ہے میرا کوئی بندہ جو مجھے پکارے میرے سامنے گڑ گڑائے میں اس کے رونے کو سنوں، میں اس کی فریاد سنوں، میں اس کا دامن بھروں۔ میرے بھائیوں یہ دعا ہونی چاہیے۔ اخلاص اسی کا نام ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ مانگیے اللہ سے، گڑ گڑائیے اللہ سے۔ میں دہلی کے اس مدرسے کو آج بھی جانتا ہوں اور جب میں دہلی جاتا ہوں تو اس مدرسے کا ایک چکر ضرور لگاتا ہوں، جس مدرسے کی بنیاد ایک بہت بڑے عالم دین نے رکھی تھی، جس مدرسے کی بنیاد ایک بہت بڑے عالم دین نے رکھی تھی، لیکن ان کا عمل آپ کو نہیں معلوم۔ ان کا عمل کیا تھا؟ نوجوانوں سنو اور رشک کرو گے آپ، سنو۔ آئے اپنے موبائل میں مولانا جرجیس کی سیلفیاں لینے والوں، اپنے گھروں پر آ کر مولانا کی سیلفیاں لے کر اپنے یار دوستوں میں شیئر کرنے والوں اور یہ جتانے والوں کہ دیکھو میں مولانا سے مل کے آیا ہوں، دیکھو مولانا صاحب میری دکان پہ آئے تھے، دیکھو مولانا صاحب میرے گھر میں آئے تھے۔ آپ اپنی تکبر اور اپنا گھمنڈ جتانے والوں، اپنی موبائلوں میں سیلفیاں قید کرنے والوں، فوٹو کو لینے والوں، سنو اللہ کے نیک بندے کس طریقے سے بچا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے میرا چہرہ نہ آئے۔ میں ان کے ایک بزرگ ہیں بیچارے، مدرسہ چلا رہے ہیں، بنیاد رکھے ہیں، اور حال ان کا یہ تھا کہ جب رات ہوتی تھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ چپکے سے اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ میرے مدرسے میں 50 بچے پڑھتے ہیں، 60 بچے پڑھتے ہیں، ان بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں، زکات لینے میں شرم آتی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو 100 روپے چندہ ملتا 50 کھا لیتا ہوگا، 50 بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اس طنز سے بچنے کے لیے وہ زکات وصول نہیں کرتے تھے، چندہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس مدرسے کے بچوں کو کیسے پالا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو، اس کے لیے وہ رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر سے نکلتے تھے اور اسٹیشن پہ چلے جایا کرتے تھے، پلیٹ فارم پہ چلے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ٹرینیں کوئلے کے انجن سے چلا کرتی تھی، بجلی کے تار سے نہیں، الیکٹرک انجن نہیں تھے، کوئلے والے انجن ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اس وقت وہ اسٹیشن پہ جایا کرتے تھے اور کلی گیری کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کا سامان اٹھا کر اپنے سر پر لاتے تھے اور ان کو باہر تک چھوڑنے جاتے تھے۔ پوری رات وہ جو کماتے تھے، صبح ہو کر وہ اپنے مدرسے کے بچوں پر وہ کمائی خرچ کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے اسی بہار سے کچھ بچے پڑھنے کے لیے گئے، اسٹیشن پر اترتے ہیں دلی کے، رات کے 10 بجے ان کی ٹرین دلی پلیٹ فارم پہ پہنچتی ہے۔ ان بچوں کی نظر ایک لمبی داڑھی والے بزرگ کے چہرے پر پڑتی ہے جو کلی کے ڈریس میں ہے۔ ان بچوں نے اس کو بوڑھا سمجھ کر اور کلی سمجھ کر آواز دی اور اپنا
आदमी अपना भाई समझ कर आवाज दी, ए बाबा इधर आओ, कुलियो सामान उठाओगे, हाँ लेके चलोगे, हाँ क्या पैसे लोगे, बेटा कहाँ आए हो, अरे वो ये मदरसा है ना फला जगह, वहाँ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ में दाखिला लेना है, बेटा जो मर्जी हो दे देना। नहीं नहीं बाबा पैसे बताओ कितने लोगे, बच्चों तुम पढ़ने आए हो, कुरान पढ़ने आए हो, हदीस पढ़ने आए हो, जो मन में आए दे देना, ना हो कोई बात नहीं, लाओ बच्चों सामान। वो लड़के कहते नहीं नहीं पहले पैसे बताओ। उन्होंने कहा मैंने बेटा कह तो दिया, जो तुम्हारी मर्जी होगी दे देना, रख लेंगे। और ये कहते कहते उसने उन बच्चों का सामान अपने सर पर लाद लिया, और लाद कर वो सामान जब पहुंचा बाहर प्लेटफार्म के बाहर, उन बच्चों को कहा कि लो यहां से बस मिल जाएगी, इतने नंबर की बस और फला फला जगह चले जाना। उन बच्चों ने पैसे निकाल कर उस बुजुर्ग की जेब में डालना चाहा, उस बुजुर्ग ने वो पैसा उन बच्चों के हाथ में थमाते हुए कहा बेटा तुम लोग अल्लाह के नबी के मेहमान हो, कुरान सीखने आए हो, हदीस पढ़ने आए हो, क्या मुझे अल्लाह के रसूल के मेहमानों की इतनी भी खिदमत करने की तौफीक नहीं मिलनी चाहिए? मुझे पैसा दोगे, क्या मुझे इतना भी सवाब लेने का हक नहीं है कि मैं फ्री में तुम्हारा सामान उठा दूं? तुम रसूलुल्लाह के मेहमान हो। और ये कहकर उनके पैसे वापस करके ये बुजुर्ग चल देता है कुली का काम करने। ये बिहार से जाने वाले बच्चे उस बुजुर्ग को देखते रहते हैं और उस वक्त तक अपना सामान नहीं उठाते हैं जब तक कि वो बुजुर्ग उनकी आंखों के सामने प्लेटफार्म से दूर नहीं हो जाता है, चला नहीं जाता है। मुझे मालूम है कि इस तकरीर के बाद भी सेल्फियां ली जाएंगी। ये सब बोलने के बावजूद भी बेशर्मी हमारी ढीठ पड़ चुकी है, वो छूटेगी नहीं। ऐसा दर्द भरा वाक़या सुनाने के बाद भी हमारे दिलों में ये बात उतरेगी और हमारे आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन तकरीर खत्म होते ही हम चिकने खड़े हैं, हम वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं। नहीं मानेंगे हम तो वो इंसान ही नहीं, कुत्ते की वो दुम है जो 12 साल भी नल के पाइप में रखा जाए उसके बाद निकालो तो टेढ़ी निकलेगी, वो सीधी नहीं हो सकती है। हम बिल्कुल उस तुम की तरह हो चुके हैं, हम टेढ़े ही रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं। मौलाना जलजीत साहब आप बिहार आओ ना आओ क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं आएंगे दूसरे आएंगे। आपकी स्टाइल में तकरीरें करने वाले अब तो बेशुमार पैदा हो चुके हैं, हम उनसे भी काम ले लेंगे। हाँ हाँ लीजिए, हम शौक से कहते हैं कि अब हमें बख्शिए मेरे भाइयों, अब हम इतनी जिद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब हमारी उम्र वो नहीं जो कभी 18 और 20 साल हुआ करती थी, हम भी अपनी उम्र के अब 45 साल क्रॉस कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम 2 घंटे से पौने 2 घंटे और 1.5 घंटे की तरफ आ रहे हैं। अब 1-2 बीमारियां हमारे जन्म लेना शुरू कर रही हैं मेरे प्यारे साथियों। अब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद सदारत की कुर्सी पर आएंगे और 5 मिनट के लिए बोल के निकल जाएंगे, इसलिए कि यही जिंदगी का नियम है, यही जिंदगी का उसूल है। जो आया है उसको जाना है। हमारा असली घर ये नहीं, असली घर वो है और उस घर के लिए हमें और आपको तैयारी करना है। जरजीत साहब तुम्हें बहुत इज्जत मिल चुकी है, तुमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत इज्जत के नमूने देख लिए हैं, लेकिन अब इज्जत के बाद तुम बुढ़ापे में भी जाओगे। अब दूसरी कौम आएगी और दूसरी नस्लें आएंगी और दूसरे लोग इसको अब इस मसलत को जिंदा रखेंगे। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का ज़ाब्ता है। हम आए हैं तो यहाँ से जाना भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मौत तुम्हें उधर भी आ जाएगी जहां तुम छिपना चाहते हो। चाहे तुम बड़े बड़े किलों में चले जाओ, बड़े बड़े सुतूनों में छुप जाओ, जमीन के गहराइयों में चले जाओ मेरे भाइयों, बंकरों में छुप जाओ, कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। अंतरिक्ष में जाने वाला, चांद के बाद मरीख का सफर करने वाला, प्लाटो नाम के
प्लाटो नाम के सैयारे पर सफर करने वाले का कनेक्शन जब दुनिया से टूट जाता है और जब वो आसमान से गिरता तो पूरी दुनिया में उसके लिए दुआएं हो रही हैं। मेरे भाइयों, आखिरकार वो फिजाओं में जाता है और गायब हो गया है, आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। तुम आसमान की बुलंदियों में चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। तुम बंकरों में छिप जाओ, पूरे 10 साल तक छिपा रहा, अपने आप को बंकरों में छिपकर बचाया रहा, लेकिन देख लो एक दिन सद्दाम हुसैन भी किसी बंकर में पकड़ा ही जाता है और आखिरकार पकड़ा गया और फिर मुकदमा चला और तख्तेदार पे लटका दिया गया। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी जाना चाहो चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी, मौत तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी। मेरे भाइयों, उस आलिम को देखो जो रात में कुलीगिरी का काम कर रहा है, वो आंखों से ओझल हो गया और ये बच्चे बस पकड़ कर मदरसे चले आए। सुबह होकर इसी आलिम दीन को मदरसे में इंटरव्यू लेना था। 10 बजे जब ऑफिस खुलता है और बच्चे जब इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में कदम रखते हैं, इन बच्चों की नजर जब उस दाढ़ी वाली बुजुर्ग हस्ती पर पड़ती है तो पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। ये तो वो बुजुर्ग मौलाना है जो कल स्टेशन पर लाल रंग का कुर्ता पहनकर कुलीगिरी का काम करके हमारा सामान उठा रहा था और आज हमारा इंटरव्यू ले रहा है। आज हमारा उस मौलाना ने इंटरव्यू नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा, मेरे बच्चों तुम मेहमान रसूल बनकर आए हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने भेजा है, मैंने तुम्हारा एडमिशन कल रात ही में कर लिया है। जब तुम स्टेशन पर मिले थे मैं तुम्हें यहाँ से लौटाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने जिन उम्मीदों से तुम्हें भेजा है बस उन उम्मीदों पर खरे उतरना, कुरान और हदीस के सिपाही बनना, इस्लाम का प्रचार करना, तबलीग करना, तुम्हारा एडमिशन हो गया। और हाँ, कल जो वाकया तुम्हें स्टेशन पर नजर आया था उस वाकये को वही भूल जाना। मेरे किसी स्कूल के तालिब इल्म को वो मंजर मत बताना। मेरे बच्चों, तुम्ही को मालूम है कि मैं कुली हूँ, किसी को मालूम नहीं है। मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को ये पता चले कि मैं कुली हूँ और रात में जो कमाता हूँ वो दिन में अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ। इस बात का इल्म मैं नहीं चाहता हूँ किसी को हो, इसका अज्र मैं सिर्फ अल्लाह से लेना चाहता हूँ, इसका सिर्फ मुझे अज्र अल्लाह तबारक व तआला से चाहिए। उस बुजुर्ग आलिम के इंतकाल के बाद मेरे भाइयों, इन बच्चों ने उनकी आप बीती सुनाई और कहा कि वो तो रात में कुली का काम करते थे। इंतकाल के बाद ये इखलास है, वह अमल स्वालिहात, ईमान के साथ ये अमल स्वालिह चाहिए। ये अमल स्वालिह अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो बेकार है।